and welcome. Today I'm extremely happy and excited to have with us Mr. Amjad Khan, a very special guest who has joined us today. Amjad, thank you so much for joining and taking out. It's a pleasure, always a pleasure to do something with K11. Thank you for calling me. Thank you for joining. A very brief introduction to our viewers. Mr. Amjad Khan, as many of you may already know, is the founder and director of Reps India. Mr. Amjad Khan also is the chairman of the Global Membership Development Committee of IC Reps. IC Reps, for all those who may not know, it stands for International Confederation of Registers for Exercise Professionals. It is a mother organization for all of the national level registers like Reps India, Reps New Zealand, Reps UAE and many others. And he is also the chairman of IC Reps Limited and an extremely successful fitness professional himself for many years. And today, as I said, very happy to have him on board and really looking forward to have some very interesting chat as far as the fitness industry is concerned in India and of course also globally. And I'm also very excited to know about his journey, how he started his journey as a fitness professional. So without further delay, Amjad, first of all, I would like to know, you have been a fitness professional, you have been a personal trainer and आपने काफ़ी साल दुबई में काम किया है and मैं जानना चाहूँगा हमारे viewers के लिए, I would like to know how did you start, कैसे आपका fitness professional का जो आपका journey है, how did you start or where did it start, when did you start, and tell us about your journey as a fitness professional from the beginning. First of all, thank you very much, Vikram, for such a beautiful introduction, and I really appreciate it, and thank you very much for calling me. And I would appreciate, I would prefer talking in Hindi so that हमारी जो audience है वो काफ़ी बड़ी है, I'm sure. And हर कोई आदमी समझ पाए, देख पाए. शायद इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे प्रोफेशन में कितना पोटेंशियल है कि नहीं है, और क्या आदमी एक स्टूडेंट कर सकता है अगर वो इस प्रोफेशन में आता है. तो I'm sure it'll be much more clarity अगर हम लोग एक लार्ज ऑडियंस को केटर करेंगे. सो अगर मेरी जर्नी की बात करें तो आई थिंक इट विल टेक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत वक्त लग जाएगा. बट मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसको बहुत कम समय में आपको एक बता सकूँ और उसका एक एंड में eventually the whole idea of telling sharing my journey would be so that people can get also affected with what I say and they get inspired. I haven't done much in life, to be honest. I feel I have much more to do in life and many more folds to grow. But that's modest of you. No, but still I feel I'm still learning and I'm still trying to grow and to look forward. But I feel कि जो भी अभी तक मैंने किया है, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो कि उस लेवल पे हैं जहाँ शायद मैं 10 साल पहले था. तो अगर वो जो मैं शेयर करूँगा शायद अगर उनको ये बात समझ आती है तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो मेरा जो अपने आप मैंने सीखा, सो ऑल दैट गैप विल बी कवर्ड एंड दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी राइट वे. आई थिंक एक सही एडवाइस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडी, स्पेशली अगर हम किसी करियर में जा रहे हैं और उस करियर में हमें कुछ नॉलेज इतना नहीं है, वी नीड सम नॉलेज. सो दिस इज़ आउट इज. तो शुरू अगर मैं आपको बताऊँ, जर्नी मेरी शुरू हुई, आई हैव बीन इनटू फिटनेस और बहुत ही सालों से मैं फिटनेस के लिए पैशनेट तो बहुत पहले से ही था. और बट कभी मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज़ कि शायद मुझे इट विल बी अ गुड प्रोफेशन. ऑनेस्टली मुझे शुरू से हमेशा ही लगता था कि शायद इस प्रोफेशन में इतना पैसा नहीं है, एंड लाइक ऑल ऑफ अस थिंक. बट जब मैंने डिसाइड किया, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 अप्रॉक्सीमेटली, तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई वांटेड टू जॉइन एन इंटरनेशनल चेन. सो मैंने फिटनेस फर्स्ट में जाके अपना इंटरव्यू दिया एंड मैं सेलेक्ट हो गया. वहाँ पे उस टाइम पे मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं थी. फिटनेस फर्स्ट की एक सर्टिफिकेशन वहाँ पे मैंने करी. इट वाज अ 7-day वर्कशॉप एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. और ये इंडिया की बात कर रहे हैं? ये इंडिया की बात कर रहा हूँ. एम्बियन स्मॉल गुड़गांव में एक फिटनेस फर्स्ट का एक जिम होता था. सो जब मैंने काम करना शुरू किया वहाँ पे, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि हाउ मच आई कैन अर्न. सो एक आइडिया लेना था मुझे कि कितना एज अ पर्सनल ट्रेनर मैं कमा सकता हूँ. एंड हाउ डिड आई गेट द आइडिया? डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज़ पर सेशन.
और मुझे उसका कितना परसेंटेज मिलेगा. सो स्ट्रेट अवे यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि आप कितना कमा सकते हो. तो आई फेल्ट इट वाज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज मुझे याद है अराउंड 1000 रुपये का एक प्लैटिनम ट्रेनर का सेशन होता था उस समय. एंड इफ़ यू डूइंग वेल, अगर आप अच्छे नंबर्स कर रहे हो, अच्छे सेशंस कर रहे हो, क्लाइंट्स काफ़ी हैं, तो आई थिंक यू गेट अराउंड 500 रुपीज़ अ सेशन. सो अगर मैं 100 सेशन करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट 50,000 रुपये अ मंथ, विच इज़ ओनली 4 आवर्स अ डे. So I could feel the potential of the profession तभी से ही. And this we are talking 2010. So मुझे हमेशा शुरू से ये रहा है कि जब भी आप किसी चीज़ में जाते हो तो यू हैव टू मेक श्योर आप 1 साल 2 साल नहीं, यू थिंक अबाउट इट फॉर लाइफ, और लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है. तो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. बट जब मुझे लगा कि चलो 50,000, लेट्स से अगर मैं 1 साल बाद प्लैटिनम बनता हूँ, आई डू रियली वेल एंड ऑल दैट, उसके बाद मैं इतना कमाऊंगा, इवन देन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. सो आई थॉट ओके, अगर इस समय यहाँ पे इतना है तो लेट मी फाइंड आउट हाउ आई कैन मूव, मे बी आई कैन मूव टू अ डिफरेंट कंट्री एंड एवरीथिंग. देन समबडी टोल्ड मी अबाउट देन अबाउट दुबई. सो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड मैंने रिसर्च करना शुरू किया दुबई के बारे में. एंड सेम थिंग आई फाउंड आउट कि वहाँ पे कितना एज अ PT यू कैन अर्न पर सेशन. आई एक्चुअली कॉल्ड फिटनेस फर्स्ट इंडिया से बैठ के, और मैंने फ़ोन करके पूछा कि आई वॉन्ट टू हायर अ ट्रेनर. एंड आई वांट टू हायर अ ट्रेनर, तो व्हाट आर योर पैकेजेस. एंड तो उन लोगों ने बोला कि ये हमारे पैकेजेस हैं. एंड देन आई रियलाइज ओके, अगर इट वाज अराउंड 2500, सो अगर 2,500 दिरहम का पैकेज है, तो आई रियलाइज ओके, विच मीन्स 50% अगर मेरा होता है, तो दिस इज़ हाउ आई एम श्योर. सो अप्रॉक्सीमेटली बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 3,000 दिरहम का पैकेज था, 2250 समथिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 200 दिरहम्स अ सेशन. इट वाज फॉर 12 सेशंस. So 12 सेशन अगर 2400 के हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 200 दिरहम सेशन. सो आई वुड गेट अराउंड 100. एंड देन आई कैलकुलेटेड एवरीथिंग कि अगर 100 सेशन करता हूँ तो बॉस मैं तो 10,000 दिरहम कमाऊंगा, अगर 200 करता हूँ तो 20,000. तो वहीं से मेरी कैलकुलेशन शुरू हो गई थी. एंड देन आई फाउंड आउट कि प्लैटिनम ट्रेनर कितना है. देन सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू फाइंड आउट. आप ये जानना चाहते हो कि एक्चुअली जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उसमें पोटेंशियल कितना है. So this is exactly what I did. Right. But I'm talking about being on the top, on reaching that level and doing that many sessions. But उसके लिए मुझे कुछ, I'm talking about the highest level of getting paid as a professional. Right. But मैं तो अभी इस लेवल पे हूँ, तो ये गैप को कैसे कवर करने का है. So अब मैंने सोचा to reach that level, I have to be on that level ना to match it up. तो उसके लिए मैंने फिर education, the most important tool. If I enter a gym, if I see equipment, I have to be trained on that. अगर मैं ट्रेन नहीं हूँ उनके ऊपर, then I cannot teach people. अगर मैं लोगों को सिखा नहीं पाऊँगा तो ऑटोमेटिकली फिर मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा ये कुछ काम करने का. एंड लोगों को जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारी जॉब बेचने का नहीं है, हमारा जॉब है रिटेंशन. और रिटेंशन तब होगा जब क्लाइंट को रिजल्ट मिलेगा, और क्लाइंट को रिजल्ट तब मिलता है जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है, आप उसको ठीक से सिखा पाते हो. और आप ठीक से तभी सिखा पाओगे जब आपके पास उसकी नॉलेज होगी, और आपके पास नॉलेज तभी होगी जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी एजुकेशन लोगे. तो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एजुकेशन. सो देन उस समय मैंने ढूंढा. सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू द US. तो मैं US गया, करीब मैं 8-9 महीने वहाँ पे रहा, और वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर फेस टू फेस डिप्लोमा किया पर्सनल ट्रेनिंग में, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से. सो लोगों ने मुझे बोला कि तू ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर ले, ऐसी बहुत हैं वहीं पे, वाई क्यों जा रहा है इतनी दूर पैसा खर्चने, और इतना कुछ जा रहेगा वहाँ पे पैसा खर्चेगा. सो फॉर मी इट वाज नॉट अबाउट पैसा खर्चना, इट वाज अबाउट एन इन्वेस्टमेंट. ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बैठ के एक कंप्यूटर पे देख के किताब पढ़ के, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग पीपल one-on-one, मैन. It's a very practical job, and then somebody is telling me who himself is not a personal trainer, who is successful, कि तू यहाँ पे बैठ के एक किताब से पढ़ के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन दे के उसको तू वो कर ले. सो आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच द टॉप. सो अगर मुझे टॉप पे पहुँचना है तो मुझे भी फिर एफर्ट्स भी अपने उसी लेवल के करने होंगे. सो मेरे को याद है उस 10 साल पहले करीब हमारे वहाँ पे जिम में किसी ने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की थी. तो बहुत उस समय इतना कल्चर भी नहीं था 10-12 साल पहले सर्टिफिकेशन का, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी. सो 1 साल मैंने काम किया, 1 साल में अंडरस्टैंड किया वो क्या इंडस्ट्री है पूरी, समझा ठीक से उसको. देन आफ्टर वंस आई अंडरस्टूड, एक चीज़ मुझे समझ आ गई है, अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. एंड नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो इट्स वेरी टू बी ऑनेस्ट वियर्ड कि लोगों को ये समझ नहीं आता है
हर फील्ड में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हमारी फील्ड में लोग इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज़ वॉट वी डू नाउ डेज ना. क्योंकि पढ़ाई के हमारी फील्ड में जब पढ़ाई की बारी आती है लोग कहते हैं कि क्यों पढ़ना, एक छोटी बेसिक सर्टिफिकेशन करो, और नाउ एवरीबॉडी वांट टू अर्न एंड बी द बेस्ट. सो ये कल्चर क्यों है? ये कल्चर में भी शायद वी हैव टू चेंज. ओनली देन यू नो वी कैन स्टार्ट अर्निंग मच मोर एज अ फिटनेस प्रोफेशनल. सो कमिंग बैक, फिर मैं देन आई वेंट टू द यूएस. मैं गया वहाँ पे एंड जितने लोगों ने मेरे को मना किया, लेकिन आई स्टिल वेंट देयर एंड आई मेड श्योर आई डिड द कोर्स होता था मंडे टू फ्राइडे. हर सैटरडे संडे में कोई ना कोई दूसरी सर्टिफिकेशन भी करता था. तो ऐसा नहीं है सैटरडे संडे बैठ के मेरी छुट्टी नहीं होती थी. तो मंडे टू फ्राइडे वो रहता था, हर सैटरडे संडे कोई ना कोई कोर्स करता था मैं. और बाय द टाइम आई केम बैक आई हैड अ होल बंच ऑफ सर्टिफिकेशंस. Since you spoke about your certifications, I'd like to know आपने कौन से certifications किए, आपने क्या-क्या US में गए आप education करने के लिए, तो can you tell us what all certifications you did, what all courses you did? एक जो सबसे most important I would say was the main diploma which I did was in personal training. Right. And nutrition. It was a diploma in personal training and nutrition from one of the most reputed institutes. Right. And then it was a very face-to-face and a practical approach in that course which I did. Apart from that, I also did NSCA, which is an online certification, but just to make sure that I have gained enough knowledge, I wanted to try my hands on these online certifications as well. Right. So I finished the face-to-face course and I prepared for the exam, and I did that. NSCA is a very reputed organization. National Strength and Conditioning Association. It's a very, very tough course. But again, I would say that doing NSC alone would not have been a good choice, because it's very, very important that you learn things face to face. आपका foundation आपने face to face. Foundation face to face. I learned everything face to face, practical. And then when I prepared for, it was very easy for me. Right. And then I did TRX. So TRX is actually one of the most important tools. Now, no matter which gym you go, you will find a TRX. Kettlebell is a very important tool. So मैंने TRX का suspension training course किया, फिर मैंने TRX का sports medicine training course किया, which was another one. Then I did kettlebell level 1 and kettlebell level 2 as well, because advanced personal trainer. I did power plate. I'm sure you know power plate तो पता होगा लोगों को. तो since मैं वहाँ गया था, तो I wanted to make sure कि जितना भी है मैं सब कुछ करके आऊँ, so that when I enter the floor, जब मैं काम करने जाऊँ तो I know everything and nobody knows better than me. So power plate level 1 और level 2 उनके 2 courses होते हैं, वो भी मैंने किया. At the same time I did Pilates as well. Pilates का एक course होता है, एक mat Pilates, mat based Pilates, उसका मैंने एक workshop किया था. These are all certifications. Right. And I did CrossFit as well, CrossFit level 1. That was something which was, has been popular for many years. And at the same time, so one of the reason why I did all this was not because I genuinely wanted to learn or genuinely wanted to. So end of the day, I am a product, and I realized very quickly that this is what people want from me. Right. So what people want from me, I have to make sure I learn it properly to be able to teach them. Correct. अगर मुझे ही नहीं आता होगा तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा? So in order to be a successful personal trainer, I wanted to make sure that I know everything so I can teach them properly, right? And so your intention was to become a better and better product. Absolutely. For the market that you are catering to. Absolutely. And you ended up doing the right thing for that, to educate yourself as much as you absolutely, can. Absolutely. And apart from that, I did some other small courses as well. Right. But these are the main courses, और ये सारे जो आपने certifications बताए, you did all of this like before entering the industry. I did everything before entering the industry. Right. I would say I entered the industry with Fitness First in India. So that was the time before you moved to US. Before I went to the US. Right. So after understanding the whole industry, I went to the US, and then when I went to Dubai, I wanted to make sure I go, because I prepared myself for Dubai. Right. Because I felt कि ये बहुत ही अच्छी जगह रहने वाली है, जो कि मैंने पता किया उस हिसाब से. बट मुझे ये भी पता था क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट है तो कंपटीशन बहुत होने वाला है. बेसिक क्वालिफिकेशन लेके अगर मैं जाता हूँ तो डेफिनेटली कुछ बहुत मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे. सो ये सब मैंने क्वालिफिकेशंस की, ये सब ख़त्म करने के बाद देन आई वेंट टू दुबई. एंड मुझे याद है कि सो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, एंड इन अ जिम, वन ऑफ द जिम्स ऑफ फिटनेस फर्स्ट मिडल ईस्ट, जहाँ पे बेसिकली मुझे ठीक नहीं लगा करना. सो देन आई वेंट टू अ क्लब. मैंने अपने आप रिसर्च करके एक ऐसे जिम में गया फिटनेस फर्स्ट के, जहाँ पे आई फेल्ट द पोटेंशियल विल बी वेरी हाई.
व्हेन आई से दिस आई एम श्योर शायद काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा, बट इसका मतलब ये है कि जो भी एरिया थोड़ा फाइनेंशियली हाई प्रोफाइल होता है, दैट इज़ आवर प्लेस, दिस इज़ वेयर वी वुड वांट टू वर्क बिकॉज पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन पर्सनल ट्रेनिंग। तो मुझे ऐसा लगा शायद दिस विल बी द राइट एरिया। मैं उस एरिया में गया और इस एरिया के फिटनेस में गया। लकीली द मैनेजर वॉज देयर, वॉक इन। सो ऑनेस्टली इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, मिलते भी नहीं है। एंड वो मेरे से मिला, आके उसने देखा तो उसने मना कर दिया, मेरे पास जॉब नहीं है। और तो मैंने उसको ये बोला तू 5 मिनट बैठ एंड जस्ट लुक एट माई सर्टिफिकेशंस। 2 मिनट में हिज फेस चेंज कम्प्लीटली एंड ही वाज लाइक आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। क्योंकि किसी के पास इतनी सर्टिफिकेशन, इतनी पढ़ाई कोई करता ही नहीं था फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, एंड मे बी प्रॉब्ली 1 in hundreds of thousands. So then he gave me a small test. Okay. So he gave so just to check कि सब कुछ genuine है, इसको पता भी है, कुछ नहीं पता। तो then मैंने वो टेस्ट उसको ख़त्म करके दे दिया 5 मिनट में, and he was even more impressed with that. He said normally most of the people don't even finish the test 100%. And so that very moment he was super impressed. And उसने फिर बोला I'll hire you right away. And this is how it all started. Your career actually properly started in fitness was in Dubai. You can say that a proper official career started in India, but I would say that I would not call it a career. I would say more of a internship because I was not ready for it. I was not educated enough. I could not do what I should be doing, to be honest. More of an exposure to the industry. More of an exposure. So career is always a career when you're actually doing something which you're supposed to do, and you can only do what you're supposed to do जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। So वो नॉलेज लेने के बाद when I started, that was I would say, so अभी काफ़ी जो बच्चे हैं मैं उनसे मिलता हूँ, स्टूडेंट से भी मिलता हूँ, तो उन लोगों को ये लगता है कि करियर जॉब मिल गया सब कुछ ख़त्म। जॉब मिलने के बाद ही तो सब कुछ शुरू है। ऐसा नहीं है आपको जॉब नहीं है आपके पास और जॉब मिलने के बाद सब कुछ ख़त्म। दैट इज़ व्हेन एक्चुअली इट ऑल स्टार्ट्स। So this was when आपका जो career दुबई में आपका this was 2012 जून में मैंने अपना बेसिकली ऑफिशियली अपना फिटनेस फर्स्ट दुबई के साथ अपना करियर मैंने शुरू किया था। एंड देन आई रिमेंबर आई जॉइंड एज अ पर्सनल ट्रेनर, एंड आई एम श्योर द मोमेंट आई जॉइंड आई वांटेड टू नो हाउ कैन आई ग्रो। सो फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड वाज आई आस्क्ड माय मैनेजर कि आई वाज एक्चुअली on 50%. So whatever I earn, 50% commission. So whatever I earn, basically I'll be getting a 50% commission on that. तो मैंने पूछा उससे अगर, और एक होता था हमसे ऊपर प्लैटिनम ट्रेनर। तो मैंने पूछा प्लैटिनम ट्रेनर कितना कमाता है। ऑफ कोर्स उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है, ऑफ कोर्स परसेंटेज भी बढ़ जाता है उसका। तो ही टोल्ड मी नो प्लैटिनम यू हैव टू एटलीस्ट बी इन द कंपनी फॉर 1 year. And you have to hit all your budgets. So I'm sure people who are listening to this, they understand what budgets are. तो बेसिकली हम लोगों को एक एज अ पर्सनल ट्रेनर एक बजट मिलता है कि इतने सेशंस आपको करने हैं और इतनी पर्सनल ट्रेनिंग सेल्स आपको करनी है। मैंने उसको बस एक बात बोली, मैंने कहा मुझे लेट्स इफ़ आई वांट टू बी अ प्लैटिनम ट्रेनर अर्लियर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कह रहा है नहीं ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है और 1 साल तो करना पड़ेगा। सो देन मैंने उससे फिर बड़े नंबर्स के बारे में बात की। मैंने बोला ठीक है, तो जो तू 1 साल में जो बजट है वो मैं तेरे को 6 महीने में देता हूँ। हाँ, सो नाउ बेसिकली सो दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड हिम। एंड उसके बाद व्हाट आई डिड वाज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ वेयर पीपल इवन बेसिकली उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बजट भी हिट करना अपना। सो आई वाज गिवन अ टारगेट ऑफ 10,000 dirhams and 40 sessions. I did around 45,000 dirhams, 450% of my budget, and I did around 153 sessions in the first month. In the first full month of my job. तो अभी जो लोग समझ पा रहे हैं, आई एम श्योर ये जो कि दे कैन रिलेट टू मी कि कितनी बड़ी बात होती है फर्स्ट। और उसका रीज़न जो सबसे बड़ा फिर मैं ये बोलूँगा विक्रम था एजुकेशन। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मेरी प्रोफाइल में इतनी एजुकेशन थी और मुझे सब कुछ पता था। आई फेल्ट लाइक आई एम द बेस्ट here. Yes. And then apart from that I also worked hard. I was in the gym 6 बजे से सुबह 11 बजे तक लेकर रोज़ without any छुट्टी, without anything. I used to make sure that I'm speaking to everybody on the member because knowledge को अपने पास रखनी नहीं है मुझे लोगों को दिखाना है कि मेरे पास knowledge है। पहले तो नॉलेज लिया, अब दिखाना है। तो उसके लिए मुझे आई हैव टू बी ऑन द फ्लोर ऑल द टाइम। कोई जिम में है नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को कुछ क्लाइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आई वांट टू मेक श्योर कि मैं जिम में जाके लोगों से बात करूं, उनको ट्रायल सेशन दूं, जो भी मैं कर सकता हूं करूं। एक बहुत बड़ा बैकलॉग था कुछ क्लाइंट्स का, तो उनको मैंने कॉल किया। आई मेड श्योर कि आई वॉन्टेड लॉट ऑफ क्लाइंट्स सो आई एम नॉट फ्री ऑन द फ्लोर।
So thankfully I made a lot of clients in my very first month itself, and I planned my work accordingly. And it never stopped then. उसके बाद I remember first month, full month के बाद ही I was awarded the person trainer of the month. Okay. I'm talking about then second month में again I was awarded the same thing, third, fourth, fifth, sixth, because I was high in sales and high in sessions. Right. So पहले महीने से ही I've been getting this award of personal trainer of the month. I don't know, शुरू से मुझे ये था कि you know, to make sure that the place where you're working you should be the best. Yeah. You know, but सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होता. You have to do the best things in life. You have to in order to be the best. Right. So this is how it all started, and in the next year, January, I was promoted as a platinum, and the journey continued. And 5 years, 13, 14, 15, 16, 17th, I was awarded personal trainer of the year. Consecutively all 5 years. 2018 is when I left and I started my own company in Dubai, which is a fitness consultancy, and at the same time I formed Reps India as well. Right. I would like to interject here, अमजद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की जो कि आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं जो एस्पायरिंग फिटनेस प्रोफेशनल्स है, जो कि मे बी इवन प्रैक्टिसिंग फिटनेस प्रोफेशनल्स है, जो चाहेंगे जानना किस तरीके से अपने करियर को डेवलप किया जाए, उसमें आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की है. एक तो एजुकेशन, वो तो सबसे फंडामेंटल चीज़ है, और उसके साथ ही साथ आपने वर्क एथिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा. बिकॉज वर्क एथिक एक ऐसा चीज़ है, आपके पास नॉलेज है, उसके साथ ही साथ यू से आप दिन भर जिम में रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप बात करना चाहते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप एक्सपोज करना चाहते थे खुद को. यू वांटेड टू शो पीपल कि मैं हूँ, मैं इतना जानता हूँ, नॉलेज इतना आपने गेन किया है. वी पीपल नीड टू नो, देन आपका जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ता है. सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट की. और ऑफ कोर्स 5 साल तक आप कंसेक्यूटिवली पर्सनल ट्रेनर ऑफ द ईयर रहे. इट इज़ नो सिंपल फीट, एंड आई रियली एडमायर दैट पर्सनली. एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, आवर ऑडियंस वुड ऑल्सो लव टू नो. in all these years of you working, आपने कुछ figures बताए starting में, आपने कुछ calculations किए. So what is the kind of income you could generate in all these years? आपने इतना सारा काम किया, of course आपने काफ़ी सारे sessions, काफ़ी सारे लोगों को train किया, बहुत सारा काम किया रहेगा, then only you can be awarded a personal trainer of the year award, which is a very big thing in itself. And that too 5 साल तक कंसेक्यूटिवली आपको हर साल वो चीज़ अर्न करना, डेफिनेटली you would have done extremely well. And again you started on the note about when we are talking about a career, जब career की हम बात करते हैं तो it is important to know and important to understand what is the earning potential बिल्कुल बिल्कुल of the industry. So if you're okay sharing that, I would just out of curiosity I would like to know. So are you talking about my entire tenure as a personal trainer in Fitness First? Yeah, so maybe that will give us a... So let's say to be precise, I earned around somewhere between 3 to 4 crores Indian rupees as a personal trainer in my span of approximately 5.5 years in Fitness First Middle East. 5.5 years as a personal trainer in Fitness First Dubai, and you earned 4 to 5 crores. 3 to 4 crores. 3 to 4 crores Indian rupees. Wow, that's solid. That's very solid. Super awesome. So लोग जब ये बोलते हैं, because again because मैं बहुत स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, even when I'm in Dubai, everybody come and meet me and I tell them what to do. Right. So उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है जो मैं देखता हूँ, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है आज कि वो लोग they come with a very we always want to do the very basic and we want very high standards. ऐसा नहीं होता है. Right. If you are thinking of working with the best gym, if you are thinking of earning a lot of money, बहुत पैसा भी कमाना है, बहुत कुछ करना है, सबसे अच्छे जिम के साथ काम करना है, तो पहले आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ. एलिजिबिलिटी होना एक चीज़ की, वो एक अलग चीज़ है, बट एलिजिबल हो के तो आपको एलिजिबल काम ही मिलेगा, है ना. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस लेवल पे पहुंचो, तब जाके आप. और द बेस्ट थिंग इन आवर प्रोफेशन इज आपको हाई करने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं करना है. जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाई है जिसमें आपको सालों भी नहीं लगाना है, वो करो आप एंड योर लेवल इज ऑलरेडी हाई. सो द होल आइडिया इज इट्स अ वेरी सिंपल इंडस्ट्री. आप किसी जिम में एंटर करते हो, यू सी अ केटलबेल, यू सी अ TRX, यू सी सम बॉक्सिंग पैड, यू सी इन फंक्शन ट्रेनिंग एरिया, यू सी इक्विपमेंट. ऑल अ क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग यू टू learn all that, and when you're teaching them you should be learnt enough na.
अगर आपने वो सीखा नहीं है तो उसको क्या सिखाओगे? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. आई डोंट नो व्हाई अभी भी हम लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन करने में बहुत मुश्किल है और बहुत पैसा लग रहा है. अगर आप उस प्रोफेशन में जा रहे हो तो ये तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है. आई रिमेंबर, और आई एम श्योर आपको भी पता होगा, यहाँ पे एक मेंबरशिप फीस कितनी होगी जिम की? 2000-3000 एक अच्छे जिम की है. और आज की डेट में अगर एक अच्छा ट्रेनर हायर करते हो तो इतना तो 1 घंटे का देते हैं लोग. तो अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ गलत हैं? आपको सब कुछ आना चाहिए, सिर्फ एलिजिबल बेसिक नहीं होना है आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से आना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू डू अ सर्टिफिकेशन, अगर मैं TRX की सर्टिफिकेशन करता हूँ तो मैं TRX को यूज़ कैसे करना है वो तो सीख ही रहा हूँ, उसके साथ ये भी सीख रहा हूँ कि सिखाना कैसे है किसको. अगर मैं YouTube पे देख के या किसी चैनल पे देख के या किसी को देख के सीख रहा हूँ तो मैं बस ये सीख रहा हूँ उसको यूज़ कैसे करना है. बट इन दीज सर्टिफिकेशन जिन लोगों ने ये चीज़ें एक्चुअली इन्वेंट की हैं, दे नो हाउ टू. सो टीचिंग इज़ व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर एज अ पर्सनल ट्रेनर. सो उस चीज़ को समझना, उसको साथ ही साथ उसको मेक श्योर कि हाउ टू टीच दैट इन द राइट वे इज़ व्हाट ऑल दीज सर्टिफिकेशन आर. और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो आई कैन गारंटी यू इसके बिना कोई पर्सनल ट्रेनर सक्सेसफुल हो नहीं सकता. आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ लॉन्ग रन. शॉर्ट टर्म किसी को क्लाइंट मिल गया, कुछ हो गया, वो एक अलग चीज़ है. इन अ लॉन्ग रन बिना इसके कुछ नहीं है. इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, दिस शुड बी कंटिन्यूड ऑल योर लाइफ. कुछ ना कुछ कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड इट टेक्स ओनली 1 or 2 days, a few days and a little amount of money, and that will help you grow in your career so much that you have no idea. And this is exactly what I did as well. Rather than getting into the industry and thinking ki let me just be eligible and just get into a job and then I'll keep doing something, that would have wasted कितने साल मेरा बर्बाद होता उससे. सब कुछ करके एक ही बारी में आया मैं, उसके बाद फिर पहले महीने से पैसा कमाना शुरू कर दिया. आई रिकवर्ड एवरीथिंग इन few months. सो दैट शुड बी द राइट अप्रोच. ये अप्रोच होना चाहिए हर एक पर्सनल ट्रेनर का कि जितना आप मैक्सिमम पहले कर सकते हो करो, उसके बाद गो ऑन विद फुल ऑन विद योर जॉब. और फिर आपको जॉब्स भी अच्छी जगह मिलेगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जॉब्स भी अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि होता क्या है कि जब आप कुछ अच्छी जगह आपको जॉब नहीं मिलता है ना, तो होता है सबसे पहले लॉट ऑफ पीपल गेट डीमोटिवेटेड. ये तो इसमें तो कुछ पैसा ही नहीं है, प्रोफेशन में इसमें ये नहीं है. वो ये नहीं सोचते कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपको बहुत हाई प्रोफाइल जिम में जॉब मिले और आप बहुत अच्छा कमाओ. तो पहले ये भी तो सोचना चाहिए ना. तो दिस इज़ द राइट वे टू डू बेसिकली कि आप एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेशन, एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी होगी पर्सनल ट्रेनिंग के डिप्लोमा, उसके साथ कुछ अच्छी सर्टिफिकेशन जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो आप करके उतरो. एंड दिस इज़ हाउ यू रिटेन पीपल एंड दिस इज़ हाउ यू जनरेट इनकम. ये भी एक मेरे प्रोफेशन में ये था जो मैं जब करता था कि एक ऐसा नहीं था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक महीने में बहुत कमाया, एक महीने में कम कमाया. I was very consistent. So that's very important to how you plan your clients, how you plan your things. So 99%, 95% I would say I had retention of same clients. So that is the key. It's very important. Retention is the key. तो retention मैं तभी कर पाया because people were getting results. So I'll come back to the same thing. Results तभी मिले क्योंकि मेरे को knowledge थी. Knowledge इसलिए थी क्योंकि मैंने उसकी proper पढ़ाई की थी. एंड दैट्स अगेन अमजद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने वापस हाईलाइट किया अबाउट रिटेंशन. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग न्यू क्लाइंट्स, राइट. अगर मुझे और कोई क्लाइंट को, मेरा जो काम है एज अ पर्सनल ट्रेनर वो दिखता कैसे है फ्रॉम द रिजल्ट्स. माय क्लाइंट सक्सेस इज माय सक्सेस एज अ पर्सनल ट्रेनर. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं क्लाइंट्स को अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, अगर मैं क्लाइंट, और रिजल्ट दूंगा कैसे अगर मेरे पास क्लाइंट 1 महीने 2 महीने टिकेंगे. अगर मेरे पास क्लाइंट्स रहेंगे नहीं तो फिर आई कैन नॉट शो रिजल्ट्स. आई हैव नथिंग टू शो एज माय वर्क कि मेरा क्या. Absolutely. And there, as you said correctly, very correctly, retention is the key, and that is how you actually build a professional practice where Absolutely. you have results to show, where you have clients transformations to show. Absolutely. And, as you said again, it all kind of boils down to that one thing कि आपको अपना knowledge बढ़ाना है, आपको education करना ही है. और अगेन एक तरीके से जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा, फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ये बोलना भी पड़ता है. बहुत सारी इंडस्ट्री में तो हमें, ये तो ऑब्वियस बात है ना, आपको अगर काम करना है तो आपको नॉलेज चाहिए, काम करना है तो आपको एजुकेशन चाहिए. क्यों हमें इतना बोलना पड़ता है मुझे तो ये समझ नहीं आता. ये तो कॉमन सेंस है. बिल्कुल कॉमन सेंस है. आप जिम में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे एक इक्विपमेंट है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप क्या ट्रेन करोगे किसी को? ह्यूमन बॉडी के बारे में. एक केटल बेल सामने पड़ा है, क्लाइंट अगर आपको बोलता है मेरे को केटल बेल वर्कआउट करना है, आप क्या सिखाओगे उसको? आप क्या करोगे? आप यूट्यूब पे जाओगे,
आप देखोगे क्या वर्कआउट हो सकता है, उसको सब गलत गलत सिखाओगे। तो आज के लोग बहुत स्मार्ट हैं, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्या टेक्निक से क्या उसका फ्यूज है। शायद आपका क्लाइंट भी वही वीडियो देख के एग्जैक्टली या तो ये तो वो खुद भी कर सकता है ना। अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट को पता चला है कि नहीं चला है, खुद भी तो एक वर्क एथिक्स है अपने यार। यू नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू समथिंग, एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, बट देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन दैट। आपको पता ही नहीं कैसे करना है उस चीज़ को। सो जिस चीज़ में खुद ही ईमानदारी नहीं है, वो उस प्रोफेशन में आदमी कैसे आगे बढ़ेगा। तो यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ ना, कि मुझे आता है अच्छी तरह से और मैं जो बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे ही कर तभी तू सीखेगा। वरना मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं उसको क्या सिखाऊंगा। अगर मैं बोलूँगा ऐसे कर, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे ख्याल से ऐसे करते हैं, मैंने वीडियो में ही देखा था, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। एग्जैक्टली जहाँ क्लाइंट को लगा कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जस्ट ट्राइंग टू थ्रो इट इन, वो एक बार 2 बार हो गएगा, ओके चल यार अगला सेशन मेरे को किसी और से देखता है, इसको इतनी नॉलेज नहीं है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर टाइम पास करना है इंडस्ट्री में तो इट्स फाइन, फिर तो ठीक है, मत पढ़ाई करो, इट्स फाइन। एक कुछ छोटा मोटा कुछ करके करो, टाइम पास हो गए, घूमे फिरे, अपना वर्कआउट किया, देन इट्स ओके। सो अमजद, सुपर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। आप जैसे कोई भी इंसान एक मुकाम में पहुंचता है अपने करियर में, तो उनकी जर्नी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। और आपकी जर्नी से भी आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को, एस्पायरिंग फिटनेस प्रोफेशनल्स है, प्रैक्टिसिंग फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा 5.5 years यू वर्क विद फिटनेस फर्स्ट एंड देन यू स्टार्टेड ऑन योर ओन। आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया, फिटनेस कंसल्टेंसी स्टार्ट किया। सो हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? Why did you stop with fitness first and why did you decide to start on your own? Well, Vikram, I think first thing is that as I told you in the beginning that I'm somebody who always looks for constant growth. तो आई फेल्ट कहीं ना कहीं मेरी एज अ पर्सनल ट्रेनर ग्रोथ रुक गई थी। आई वॉज अर्निंग वेरी गुड मनी एंड लोग मेरे से बोल रहे थे इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, तू क्यों छोड़ रहा है। बट फॉर मी इट वॉज लाइक अब मैं यहाँ पे स्टक हो गया, आई एम नॉट एबल टू ग्रो। Again, maybe we can talk more on the career paths as a personal trainer. Just to cut it short and give you a brief. So from a personal trainer who's doing really well, you can actually grow towards the management level. So ये मैं कभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि this is what I enjoyed doing. This was giving me everything what I wanted. So इसलिए, but as a personal trainer मेरी जो growth थी वो रुक गई थी. The only way I could earn money is by putting in more hours. By putting in more hours is not the right growth for me because I feel आज आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो इतना कमा रहे हो, आज 10 घंटे करोगे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, so are we looking at a point where एक बार दिन में 24 घंटे करूँगा? That is not possible. Even if that is possible, तो 24 घंटे के बाद मतलब ग्रोथ रुक गई। तो this is what I felt कि now it's time to move on and think about something new. फिटनेस इंडस्ट्री इज़ बहुत बड़ी है, तब तक मेरे अच्छे कनेक्शन बन गए थे इंडस्ट्री में एंड देयर मेनी अदर थिंग वी कैन डू। सो आई फॉर्म्ड माई ओन कंपनी and I did fitness consultancy and I did many fitness activities in that, and alhamdulillah I'm doing very good with that. That was the time I also thought about basically starting reps because I realized जिस तरह से मैं आया था और तब तक reps काफ़ी popular हो गया था वहाँ पे, and fitness first was constantly asking for renewing reps. हम लोग भी जब वहाँ पे थे तो हमें बोला जाता था कि आप अपनी reps membership renew करिए हर साल, only then basically they will be able to retain our jobs. So I realized the importance and I understood the whole ecosystem कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स इतने आते हैं यहाँ से पढ़ाई करके, हमारे यहाँ पे इतने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं लाइक K11 एंड जब यहाँ से आते हैं बच्चे यहाँ पे तो उनको दोबारा यहाँ पे कोर्स करना पड़ता है। दे हैव टू डू अनदर कोर्स, 6-7 हज़ार दिरहम दोबारा खर्चने पड़ते हैं उनको, और दोबारा टाइम एंड एफर्ट एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट गोज इट्स नॉट वी टॉकिंग अबाउट गुड 1.5 months उनको रहने का खर्चा। सो ऑल दैट ट्रबल कैन एक्चुअली बी टेकन अवे अगर हम लोग इस सिस्टम को इंडिया में ले जाए। That's how I connected and I started. So honestly, it took me. I had put in a lot of time. I put in a lot of money. I put in a lot of resources and effort in this. And again, जब भी आप कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं तो लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि किसी को पता नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों कर रहे हो आप ये? And it's a non-profit organization and it's not a proper business where you earn money out of it and all that. So basically then, but I had a different vision in mind. I knew how important this can be for the Indian fitness industry. And look at it now, and in the past 2-3 years, I don't know, hundreds of professionals have actually traveled to different countries
एंड आज वो हमारा सर्टिफिकेट लेके जाते हैं एंड इट्स ऑल यू नो सो ईजी फॉर देम द अमाउंट ऑफ टाइम मनी एनर्जी दे यूज टू वेस्ट अभी ऐसा कुछ नहीं है एंड आई एम श्योर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल ग्रो many fold because this is what it is. Absolutely. मैं इनफैक्ट आपको रेप्स इंडिया के बारे में और 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा. Before that, you also actually highlighted a very important point about when you said that you wanted to continue being a personal trainer, you wanted to continue being a fitness professional, जो कि बहुत सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स को आई थिंक जैसे आपने कहा गलत फहमी होती है कि एक टाइम पर्सनल ट्रेनिंग किया या फिर फिटनेस प्रोफेशनल के हिसाब से रहे तो अभी मैनेजमेंट में जाना ही पड़ेगा या फिर उसी तरीके से करियर ग्रोथ होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू कैन रिटेन एंड रिमेन इन द प्रोफेशन. जो काम आपको पसंद है, ये काम आप एंजॉय करते हो और उसी साइड में भी आप बहुत सारा ग्रोथ और बहुत सारा Absolutely. I think for it all depends actually person to person. कई लोगों को जाना होता है मैनेजमेंट में, कई लोग सोचते हैं चलो ठीक है नाउ इट्स अ वेरी अनस्टेबल जॉब, लेट मी गेट इनटू द मैनेजमेंट में जाके एक बेसिक सैलरी होगी एंड ऑल दैट. कई लोगों को सो अगेन एज आई टोल्ड दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक. मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट सो आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल कि क्या क्या करियर पाथ्स हैं एक पर्सनल ट्रेनर के. सो फॉर मी द ग्रोथ वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ का हर किसी के लिए और आई वुड से जॉब सेटिस्फैक्शन का हर किसी के लिए अलग अलग मतलब होता है. मेरे लिए ग्रोथ का मतलब था फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, नंबर 1. rather than increasing my time of work should decrease and my income should increase. That is the real growth. The output that you get from the time. Output exactly. So इतना अभी काम किया तो अब अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को यूज़ करके we generate income in a way where we are not working for 12 or 14 hours a day. Even though when you are in a building state, जब आप किसी चीज़ को नया बना रहे होते हो तो आपको 16 घंटे 20 घंटे भी काम करते हो. But eventually the goal should be, this is what I feel, maybe it's different to other people. मेरे लिए ग्रोथ का मतलब ये है कि my income should grow, my working hours should be less, and I should be very happy and satisfied and do it. This is for me, this was growth. तो जहाँ मुझे ये 3 चीज़ें मिलती हैं, I move towards that when it comes to growth. This is what. So personal training is something which I love doing anyways, and वो मैं करता था. So as a personal trainer, the real growth would be if you really enjoy the job, you don't want to get into anything else. Over a period of time, अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाइए और अपना प्राइस बढ़ाइए. आज मैं 1000 रुपये चार्ज करता हूँ. 5 साल के बाद I have 5 साल का एक्सपीरियंस एंड मच मोर क्वालिफिकेशंस आई हैव एडेड एज अ प्रोडक्ट इन माई सेल्फ. कल मैं 2000 करूँगा, फिर मैं 10,000 करूँगा, मैं 20,000 करूँगा. So that is, I would say, and there's no limit to it, to be honest. It all depends कि how good you are, how much you know, how much result you can give. जितना ज़्यादा आप अच्छा होगा उतना popular होते होगे आप. So this can be one way of progressing in the profession. So this for me, this will be more appropriate growth rather than getting into management. So I moved to a different genre altogether. Great. I would like to ask you about Reps India actually, because that is a big development. और in fact Reps India के बारे में सवाल करने से पहले मैं being a part of the fitness industry in many ways, मैं in fact आपको gratitude express करना चाहूँगा for thinking about setting up the register in India, to actually seeing it through. तो एक Reps Register for Exercise Professionals India Foundation जो आज इंडिया में है, जिसकी वजह से एजुकेशन को, एक अच्छे लेवल के एजुकेशन को इंडिया में एक रिकग्निशन है. स्टूडेंट्स जो वैसा एजुकेशन हासिल करते हैं उनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का रिकग्निशन है. जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है. नहीं तो फिर पहले जैसे आपके टाइम में भी स्टूडेंट्स कोई दूसरे कंट्री में अगर जाना चाहे, वहाँ पे उनको एजुकेशन रिपीट करना, फिर वहाँ पे रहना, उसका एक्स्ट्रा खर्चा, फिर एजुकेशन को रिपीट करना, अच्छा एजुकेशन करने के बाद भी वो चीज़ करना, जस्ट बिकॉज ये इकोसिस्टम तभी नहीं एग्जिस्ट करता था. सो ड्यू टू योर एफर्ट्स ये आज एक रियलिटी है इंडिया में. वी हैव अ रजिस्टर एंड कितने सारे एज यू सेड स्टूडेंट्स बाहर गए हैं और उनके करियर्स जो है बहुत अच्छी तरीके से अब्रॉड ओवरसीज वो स्टार्ट कर पाए हैं. इंडिया में भी एक रजिस्टर्ड एक्सरसाइज प्रोफेशनल होना एक हायर प्रोफेशनल स्टेटस, ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम आज एक रजिस्टर का मेंबर बन सकते हैं आफ्टर डूइंग क्वालिफिकेशन. सो that's a great job done, Amjad, and for the Indian fitness industry. Thank you. How did you
come up with this? ये कैसे आपको लगा कि you want to set up a register for the country in the India chapter of reps is something that you decided, and how did it all happen? इसके बारे में थोड़ा बताइए. वेल जब मैं दुबई में रह रहा था कि तो मुझे ये आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं रह रहा हूँ वहाँ पे, मुझे सब पता है वहाँ की इंडस्ट्री, सो कैसे लोग आते हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम है. सो वहाँ से मुझे रेप्स के बारे में पता चला, द होल इको सिस्टम. एंड जहाँ मैं कुछ लोगों से वहाँ पे मिला तो तब मुझे पता चला कि लोग यहाँ पे आते हैं, देन उनको दोबारा कुछ क्वालिफिकेशंस करनी पड़ती हैं जो कि रेप्स अफिलिएटेड एजुकेशन प्रोवाइडर होती हैं, एंड देन दे कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग इन एनी रेप्यूटेड जिम्स, जो जिम एक्चुअली ओनली रेप्स रिकग्नाइज प्रोफेशनल हायर करते हैं. सो अगेन दिस इज़ हाउ इट केम इन माई माइंड. मैंने सोचा कि अगर हमारे यहाँ भी अगर रेप्स होगा तो ये जो प्रोसेस है बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगी. बिकॉज आई फाउंड आउट कि अगर IC रेप्स मेंबर कंट्रीज़ के बीच में किस तरह से पोर्टेबिलिटी चलती है, तो इट वाज ऑल अबाउट पोर्टेबिलिटी लेटर अगर होता है, अगर वहाँ पर जहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली विद अ सिंपल पोर्टेबिलिटी लेटर दे कैन एक्चुअली ट्रैवल एंड गेट अ रेप्स रिकग्निशन ऑफ दैट कंट्री वे दे आर ट्रैवलिंग टू. So it was very simple. Then I approached IC reps and I told them about my plan, and I was fortunate enough to get this opportunity, and this is how it all started. Right. So Amjad, you as we already discussed, मैंने introduction में बताया, you are the chairman of the Global Membership Development Committee of IC reps. So what is that role about? What is that role as in that position? And how does that thing benefit the registered exercise professionals of India? Is there any benefit to them? Well, my role with the IC reps as the chairman of Global Membership Development basically is all about helping many other countries who are planning to start new registers, to support them, to guide them. Right. And अगर हम बात करें कि हम एज रेप्स इंडिया रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, उनको हम लोगों को क्या फ़ायदा. टू बी ऑनेस्ट, रेप्स इंडिया इज अफिलिएटेड एसोसिएटेड विद IC रेप्स. सो IC रेप्स की एक आई वुड से ग्रोथ के लिए एक नया एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जितनी मेंबर कंट्रीज हमारी ऐड होंगी उतना IC रेप्स ग्रो करेगा, एंड इनडायरेक्टली उतना ही फिर रेप्स इंडिया ग्रो करेगा. बट आई वुड से कि आई एम बिकॉज आई एम ऑन दैट पोजिशन, सो आई एम रियली फोकसिंग ऑन द मिडल ईस्टर्न मार्केट. So whether it's Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, so ये जो markets हैं यहाँ पे fitness industry is very very good and booming. So आज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे students हैं, I see meet so many students, everybody want to go to Dubai. हम लोग क्यों Middle East में जाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि it's very easy. You get a job, you can start working there. There's no immigration issues, everything. अगर आपकी जॉब लगती है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर आपको वीज़ा देता है, you come and start working. It's that simple. It's a tax free country. एंड द इनकम पोटेंशियल इज़ वेरी हाई. तो इसलिए हमारा जो आई वुड से जो इंटरेस्ट होता है काफ़ी हम लोगों का होता है मिडल ईस्ट में जाने का, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मिडल ईस्ट. तो आजकल हर आदमी हर लोग दुबई जाना चाहता है. सो नाउ व्हाट आई फील इज़ कि दुबई की मार्केट इज़ वेरी वेरी गुड, नो डाउट, बट एंड ऑफ द डे वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि सबको अकोमोडेट करेगी. सो नाउ ऑन दिस रोल I feel if we have more markets, which is more countries as IC reps affiliated registers, so हमारे students के लिए, और to be honest from anywhere in the world, if somebody want to travel and work in Middle East, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी markets खुल जाएंगे, which is Saudi Arabia is a huge market. It's a huge market for fitness, and Oman हो गया आपका, Bahrain, Kuwait, these are very very good markets and they are doing really well, and the growth happening in these markets in terms of the fitness industry is really big. So the only thing is कि अगर हम लोग उनको चैनलाइज करके अपने साथ लेते हैं तो हम एज अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हम लोगों के लिए और कंट्रीज़ खुल जाएंगी जहाँ पे हम लोग जाके आप बाहर काम कर सकते हैं. दो आई ऑलवेज से कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बाहर ही जाके काम करना है. आजकल हमारी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री, द अमाउंट ऑफ मनी फिटनेस प्रोफेशनल्स आर अर्निंग हेयर, इट्स अ बिग मैन. आई नो जो अच्छे ट्रेनर हैं 2-3 लाख रुपए यहाँ पे महीना कमा रहे हैं, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं वाइल वर्किंग विद द जिम, वाइल वर्किंग एज अ फ्रीलांस ट्रेनर. सो नो डाउट हमारी खुद की फिटनेस इंडस्ट्री इतनी अच्छी हो रही है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड वर्क, सो बीइंग ऑन दैट आई वुड से रोल, सो मेरा फोकस जो है फिलहाल ये है ताकि हम लोग जब बाहर जाते हैं, हमारे इंडियन स्टूडेंट बाहर जाते हैं, तो उनके लिए शायद और भी काफ़ी कंट्रीज़ खुलें और भी काफ़ी कंट्रीज़ में उनके पास जाने का मौका हो.
So rather than only one place when they are in Middle East, especially when they are traveling to Middle East. So ये शायद registered expat professional का. And of course not only the Middle Eastern part, बहुत बाकी भी countries हैं. There are many other countries which we are working on. So जितनी country जितना ICRF grow करेगा, you know, जितने registers grow करेंगे, उतना हमारे जो students हैं उनके पास जाने का मौका होगा अलग अलग कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा होगा. So which this is how we can say they will be benefited. So that is my role and I'm working very hard on it, to be honest. Super, awesome. Amjad, thank you so much. आपके साथ तो you know we can go on talking and there's so much to learn from you. There's so much to discuss. You have had a very illustrious career in the fitness industry. Now also you are doing very interesting things. बहुत सारे interesting developments है. तो बात करते जाएंगे. I want to know if you have anything to share with our viewers जो कि as I have been saying, aspiring fitness professionals बहुत सारे हैं, maybe already practicing fitness professionals है जो ये देख रहे हैं. So anything that you would like to specifically say to them? I think मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा और वो ये है कि अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसको बहुत इम्पॉर्टेंस दीजिए क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एंड आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाओगे. सो इफ़ यू वांट टू डू वेल इन योर करियर लाइक एनी अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, नॉट ओनली इट शुड बी डन बिफोर यू स्टार्ट योर करियर, बट करियर शुरू होने के बाद, करियर के दौरान भी यू हैव टू मेक श्योर यू कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ. देयर इज सो मच टू लर्न एंड द इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग डे बाय डे. सो आप लोगों को बहुत ये ध्यान रखना है, टू बी इन द गेम यू हैव टू मेक श्योर यू डू रियली वेल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. और सबसे बड़ी सलाह मैं ये दूंगा कि प्लीज़ कोशिश ये करो आप सबसे जितनी मैक्सिमम पढ़ाई आप पहले कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम सर्टिफिकेशंस आप लोग पहले कर सकते हो किसी जिम को ज्वाइन करने से पहले, एज अ पर्सनल ट्रेनर इंडस्ट्री में जाने से पहले, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट विल. सो जब आप फ्लोर पे उतरोगे काम करने के लिए और लोगों को ट्रेन करने के लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा एंड यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बेसिकली जो आपको आना चाहिए वो सब कुछ आपको आता होगा, रादर देन डूइंग वन बेसिक सर्टिफिकेशन उसके बाद आप जिम में जाके यू फील आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता. तो बेस्ट एडवाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव एवरी फिटनेस प्रोफेशनल और एन एस्पायरिंग फिटनेस प्रोफेशनल, कीप स्टडिंग और पढ़ाई अपनी बिल्कुल कम मत करिए और डेफिनेटली जितना मैक्सिमम पढ़ाई आप इंडस्ट्री में उतरने से पहले कर सकते हो वो करो. Amjad, thank you so much. It's always a pleasure conversing with you. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने को और बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे सीखने के लिए. आपने टाइम निकाला और हमारे साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड आई एम श्योर हमारा जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा आपका हमारे साथ बात करना और बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की. और इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा टू लेट ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स नो दैट अमजद खान के साथ हम और भी बातें करेंगे. आज का सेशन जो है ये हमारा एंड नहीं है, एक्चुअली ये बिगिनिंग है. हम और भी कॉन्वर्सेशंस करेंगे और आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट when I meet Amjad Khan next is going to be the scope of this profession, the potential of this profession, the career paths that one can take up, how to grow in this particular profession. उसके ऊपर हमने आज थोड़ा सा बात किया और भी डिटेल में वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे. तो stay tuned everyone. I'll see you again and thank you Amjad. Thank you so much. Very much. Thank you for calling me. Thank you.